Hello students, today we will see again chapter number 6, problem number 12, page number 250, 250. Into this problem number 12, it is the last practical problem into this chapter number 6. ये practical problem आपको दिया हुआ है 12 नंबर का. Into this problem we see two partners are bankrupt. How to write their accounts when the dissolution of partnership form. हमेशा की तरह आपको लायबिलिटी और एसेट दी हुई है और बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट आपको दिए हुए. उसमें क्या इंफॉर्मेशन है वो देखना है इसके अंदर, और हाउ मेनी अमाउंट्स आर रिकवर दैट टू पार्टनर्स. इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 12 वी सी अगेन how to calculate the realization account profit are given into this loss is given into this problem number 12. We calculate loss 14,000, bank account total is 21,000. His answer is given into our textbook page number 250. आपका आंसर दिया है, which we calculate the following 5 accounts: realization accounts, all partners capital accounts, creditors accounts, deficiency account and bank accounts. The two partners are bankrupt, who will prepare trade creditors and deficiency account. Two more account also we prepare now into this problem number 12. But before we read the problem carefully, thereafter we will draw realization accounts, all partners capital account, creditors account, deficiency account and bank account. तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक रफ पेज रखिए. यहाँ पर आपको वर्किंग नोट करना है. उसके बाद में आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 250 सामने रखिए. उसमें का प्रॉब्लम नंबर 12 और ये फॉर्मेट जो है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट्स, डिफिशियंसी अकाउंट है, पांचवा जो है आपका बैंक अकाउंट. ये 5 अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, इसका स्ट्रक्चर, और बाद में कैलकुलेशन को स्टार्ट कर दें. नाउ स्टार्ट, वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. एग्जाम में आपको प्रॉब्लम केयरफुली रीड करना है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप के, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप और ऑल्सो इंक्लूड चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशंस. इसमें प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर तरीका है. वहां पे आपको बैलेंस शीट दी जाती है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है. इसलिए पहले रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. कौन सा प्रॉब्लम है पहले आइडेंटिफाई करो. डिसोल्यूशन का है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का है, या डेथ ऑफ पार्टनर का है, या एडमिशन ऑफ पार्टनर का है. तो इनटू दिस एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आना बहुत जरूरी है. या तो फिर कौन सा प्रॉब्लम है उसके स्टेप्स अलग अलग होते हैं हर टॉपिक के. यहां पर आपको दिया हुआ है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. देयर आर लायबिलिटी एंड एसेट्स इज गिवन देयर. Shashwat and Shiv are equal partner. The two partner name Shashwat and Shiv. Shiv are two partner. Their balance sheet stand as under. Balance sheet as on 31st March 2019. Liability and assets is given there. यहाँ पे आपको क्लियर दिया हुआ है. The due to weak financial position, all partners were declared bankrupt. The assets were realized as follows. So prepare ledger accounts of close the books of firm. All the partner declare bankrupt. So dissolution of the partner, we should dissolve the partner, we should prepare the realization accounts. The reason is given into this problem due to weak financial position. उन दोनों पार्टनर की फाइनेंशियल पोजीशंस बिजनेस में की वीक हो गई थी. Due to financial position are weak into these two partner, Shashwat and Shiv, he declared bankrupt because उनके पास liability ज्यादा हो गई थी. Liabilities more than assets, it is called insolvent partner. So how to write their accounts? They decided to dissolve the firm in the situations because their financial position is very weak now into this problem. New assets is given there. And how many amounts are recovered from his
सोल्ड ऑफ प्राइवेट स्टेट, उनकी प्राइवेट स्टेट सेल करके कितने अमाउंट रिकवर हुआ उसका अमाउंट इस प्रॉब्लम का आपको दिया हुआ है। अमाउंट इज रिकवर फ्रॉम ओनली 1500 फॉर शाश्वत प्राइवेट स्टेट। शाश्वत के प्राइवेट स्टेट से आपको 1500 ओनली अमाउंट आर रिकवर फ्रॉम दिस पार्टनर शाश्वत एंड शिव। शाश्वत से खाली 1500 आपको कलेक्शन हुआ। हाउ टू राइट द अकाउंट्स when the partners are their financial position are weak, he declare insolvent. Into this problem, two partners are insolvent, Shashwat and Shiv. Write down the name of partner Shashwat and Shiv. तो आपको एग्जाम में पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और टाइम लगा के इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ता है। ये particulars first partner name is Shashwat and second partner is our Shiv. In the debit side, particular detailed explanation of the entry write down into this column, particular column. Shashwat, ये शाश्वत है आपका शाश्वत एंड ये है शिव। शाश्वत एंड शिव आर पार्टनर, देयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, क्वार्टर अकाउंट्स, क्रेडिटर्स अकाउंट्स, डिफिशिएंसी अकाउंट, बैंक अकाउंट की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी यहाँ पर टैली होनी चाहिए। ये आपका गणित का टैली है। सो वी सी दैट इनटू दिस लायबिलिटी साइड फर्स्ट, पर लायबिलिटी साइड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में एसेट साइड्स। शाश्वत कैपिटल अकाउंट, ये शाश्वत का कैपिटल अकाउंट आपका, या कैपिटल अकाउंट आपका डिफिशिएंसी अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। राइट डाउन द शाश्वत कैपिटल अकाउंट 6000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले पार्टनर आपका लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, या हमेशा क्रेडिट साइड होती है, और एसेट साइड क्या होती है, हमेशा डेबिट साइड होती है, डीआर साइड। ये डीआर होती है, ये सीआर होती है। तो राइट डाउन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट्स। शाश्वत कैपिटल अकाउंट 6000, शाश्वत का 6000, शिव की इसमें डैश करो। शिव का आपको एसेट साइड में दिया हुआ। क्रेडिटर्स ये आपकी ओल्ड लायबिलिटी है, तो लाइक क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट, क्रेडिट साइड में ओल्ड लायबिलिटी है। बाय सन्ड्री लायबिलिटी इनटू ब्रैकेट ओल्ड, लिखो क्रेडिटर्स इज गोइंग टू 30,000 30,000। 30,000 आपके यहाँ पे आपको लिखना है सन्ड्री लायबिलिटी ओल्ड। अभी एसेट साइड क्यों आती है, एसेट साइड में आपको प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटास और स्टॉक, ये 4 एसेट दिए गए। बैंक अकाउंट आपके पास बैंक का अकाउंट है, इसलिए बैंक गोइंग टू दैट अमाउंट गोइंग टू दैट बैंक अकाउंट। डेबिट साइड एसेट साइड डेबिट होती है, डेबिट में आपको लिखना है। और शिव कैपिटल अकाउंट, शिव का कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट साइड डेबिट साइड में आपको लिखना है, क्योंकि एसेट साइड में आपको दिया हुआ है शिव का कैपिटल, राइट डाउन टू डेबिट साइड ऑफ दैट शिव कैपिटल अकाउंट्स। सो लिखते हैं ओल्ड एसेट्स, ये आपकी ओल्ड एसेट्स है। सो डेबिट साइड राइट डाउन टू रियल डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड। यहाँ पे ओल्ड सन्ड्री लायबिलिटीज लेना है और सन्ड्री एसेट आपको डेबिट में लेना है, रियल एसेट को क्रेडिट में लेना है आपको सन्ड्री लायबिलिटीज ओल्ड। वहां पर एक ही दिया आपको क्रेडिटर्स, उसके बाद में आपको पेड अप करना है, डिस्चार्ज करना है डेबिट साइड में। सन्ड्री एसेट्स ओल्ड आपको दिए हैं, लिखो उसका लिस्ट करो। 4 आपकी सन्ड्री एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट बाहर निकल चलता है, सबकी टोटल करो। फर्नीचर, डेटर्स आपको दिया हुआ है, उसके बाद स्टॉक। कैश इन हैंड आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि बैंक अकाउंट आपके पास है। राइट डाउन अमाउंट 14,470, देखो टोटल करो 14,750। उसके बाद में आपका 4,000 5,000, फर्नीचर 4,000 5,000 एंड स्टॉक इज गोइंग टू 6,250 6,250। 14,250 750 में 250 प्लस ये 15 हो गए, 15 और 4 15 और 5 20 24 और 6 30,000 30,000। सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं होगा। आपकी एसेट साइड के पूरे एसेट्स ओल्ड एसेट्स अपने डेबिट साइड में के और क्रेडिट में ऑल ओल्ड लायबिलिटीज। कैश एंड बैंक डेबिट साइड में तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट, बैंक अकाउंट का अमाउंट है 3,000। इसके बाद में लिखते हैं शिव कैपिटल अकाउंट,
डेबिट साइड में 2, उसका बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, शिव कैपिटल में लिखो, शाश्वत को डैश करो, शिव में लिखो 12,000, 12,000. क्या किया आपने स्टूडेंट्स? वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, देन वी write down assets and liability into realization accounts. Old assets write down to the debit side of realization accounts and old liabilities are write down to the credit side of realization. realization account के क्रेडिट में आपको पूरे old liabilities लिखना है और realization account के डेबिट में आपको क्या लिखना है? पूरे old assets. करेक्ट. सो बैलेंस आपका जो शाश्वत पार्टनर है उसका बैलेंस आपका लायबिलिटी साइड में क्रेडिट में लिखा, इसका डेबिट में एसेट साइड में था, डेबिट साइड में राइट डाउन टू डेबिट साइड ऑफ दैट पार्टनर्स अकाउंट्स. और बैंक बैलेंस का बैलेंस आपको दिया था एसेट साइड में, डेबिट साइड टू बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसके बाद एडजस्टमेंट रीड करते हैं. ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशंस ऑल पार्टनर्स वी आर डिक्लेयर बैंकक्रप्ट. ये दोनों पार्टनर डिक्लेयर करें बैंकक्रप्ट बोल के, बैंकक्रप्ट यानी दिवाळखोर बोल के उसको डिक्लेयर किया गया दोनों को, शिव एंड शाश्वत को. शिव एंड शाश्वत आर बैंकक्रप्ट इनटू दिस प्रॉब्लम. दिस इज अ बैंकक्रप्ट. Bankrupt यानी insolvent person that did not amount recover from in his partners. So assets were realized as follows. Assets आपके realized किए as follows. That is called new assets. New asset write down to the realization credit side by sundry assets. By sundry assets into bracket new. इसने परचेस किया, आपको मालूम नहीं, राइट डाउन द नेम ऑफ बैंक. बैंक थ्रू उसका ट्रांजेक्शन है, इन्होंने टेक ओवर नहीं की, रिलीज ने की नहीं, नाम नहीं थी, इसलिए बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट को आपको ये ट्रांसफर करना है. नाम मालूम होता शिव का तो ट्रांसफर टू देयर अकाउंट को, यहाँ का सेकंड यूनिट आपको बैंक में करना पड़ेगा डेबिट साइड में. तो पूरे न्यू एसेट्स लिखो, यहाँ पे फॉलो करो. न्यू एसेट्स आपके पास कौन से देखो? स्टॉक 3,500, फर्नीचर 2,000, डेटर्स 5,000, मशीनरी 7,000. स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, मशीनरी. स्टॉक, फर्नीचर, न्यू एसेट से पूरे, डेटर्स, मशीनरी. स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स एंड मशीनरी. स्टॉक आपके पास स्टॉक इज गोइंग टू 3,500, 2,000, 2,000 के बाद में आपको लिखना है डेटर्स 5,000 और 7,000, 5,000, डेटर्स 5,000, डेटर्स 7,000. आपने क्या किया? आपने न्यू एसेट्स पूरे राइट डाउन टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. जो एडजस्टमेंट में दी हुई थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रही थी, उसे कहते हैं न्यू. इसे कहते हैं न्यू. इनकी टोटल करो 7 और 5 12, 7 और 12 जो 14 थी 17,000, 17,000. ये 17,000 का आपको सेकंड इफेक्ट करना है. तो राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट डेबिट साइड. टू कहां से ले? अपने रियलाइजेशन अकाउंट से. टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट न्यू एसेट्स. न्यू एसेट कितना है? 17,000, 17,000. इसका सेकंड इफेक्ट करना है. एडजस्टमेंट के एवरी एडजस्टमेंट या टू फोल्ड इफेक्ट. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होना चाहिए. न्यू एसेट्स आपने फर्स्ट इफेक्ट यहां पर किया प्लस किया, बाद में सेकंड इफेक्ट 17,000. रियलाइजेशन अकाउंट न्यू एसेट्स 17,000. ओके, आया समझ में? नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू रुपीज 1,500, 1,500. शाश्वत private estate in not sufficient even to pay the private debts. 1,500 अमाउंट जो है वो शाश्वत के अकाउंट से not collected into this. The cost of collection and distributing the estate amounting to rupees 1,500, जिसका अमाउंट आपका 1,500 था. फुल स्टॉप है वहां पे. उसके बाद में रीड करो, शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे द प्राइवेट डेब्ट्स. प्राइवेट डेब्ट्स है कर्ज. उसका जो प्राइवेट कर्ज था, खासगी कर्ज उसे कहते हैं, वो डिड नॉट पे. वेयर एज इन शिवा, सेकंड पार्टनर जो था शिवा, प्राइवेट एस्टेट देयर इज सरप्लस 500 रुपीज. उसका सरप्लस जो था फायदा था उसका 500 रुपीज शिव का पे था. तो फर्स्ट जो अमाउंट आपको दिया है कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस, जहां से किससे कलेक्शन हुआ? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिंग जो उनका हुआ था अमाउंट 1,500, और किसने डिस्ट्रीब्यूटिंग किया आपको मालूम नहीं, इसलिए राइट डाउन टू द नेम ऑफ बैंक अकाउंट. सो राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट. टू लिखो, राइट डाउन करो, टू बैंक अकाउंट में लिखो. दैट इज आवर बैंक अकाउंट में उसका लिखो, टू बैंक अकाउंट
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल टू बैंक अकाउंट लिखो जो सेंटेंस आपको, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट कितना है आपका 1500। किसने कलेक्शन किया मालूम नहीं था इसलिए राइट डाउन द नेम ऑफ बैंक अकाउंट। ये दोनों में से किसी का नाम नहीं इसलिए राइट डाउन द बैंक अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कितना आपका 1500 जो था कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। बैंक किसने कलेक्शन किया मालूम नहीं इसलिए राइट डाउन द बैंक अकाउंट क्रेडिट सेकंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन 1500। शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इन नॉट सफिशियंट, शाश्वत की जो प्राइवेट एस्टेट है वो सफिशियंट नहीं थी सेल करने के लिए, सेल आउट करने के लिए, इसलिए इवन टू पे द प्राइवेट एस्टेट प्राइवेट डेप्स वो दे नहीं सका। वेयर एज शिव प्राइवेट एस्टेट देयर इज सरप्लस ऑफ 500। शिव के एस्टेट से 500 रुपए पे कलेक्ट पे हुए तो राइट डाउन द शिव्स कैपिटल बाय बैंक अकाउंट, शिव के इसमें लिखो 500 रुपए ये कलेक्ट हुए, उसको लिखो कलेक्ट अमाउंट, आपके पास सरप्लस क्रेडिट हुआ टू सरप्लस राइट डाउन टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट सरप्लस अमाउंट, सरप्लस कितना है 500 रुपए। ये 500 रुपए का सेकंड वेट यहाँ पे क्रेडिट में, उसके अकाउंट के डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि बैंक अकाउंट लिखा है बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है। फर्स्ट डेबिट आपका क्रेडिट में तो सेकंड डेबिट उसमें बैंक के डेबिट में आपको करना है 500 रुपये, 500 रुपये का सेकंड डेबिट। एग्जाम में ऐसे एरो आपको बताना नहीं है, खाली एक प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं आपको। एंड देयर पोजीशन सरप्लस इज 1500, ये आपको 1500 का सरप्लस है पता। तो विच वी प्रिपेयर व्हेन द टू पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 12, इसमें दो पार्टनर आपके क्या है बैंकक्रप्ट है, तो विच वी प्रिपेयर क्रेडिटर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट अपने घर पे क्रिएट किया है। क्रेडिटर्स आपके पास कितना है, क्रेडिटर्स आपके पास अमाउंट है, क्रेडिटर्स इज गोइंग टू 39,000 आपके पास क्रेडिटर्स है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखो 39,000, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000 क्रेडिटर्स आपके पास है। और डिफिशिएंसी आपको इनका जो डिफरेंस आएगा उसी के डिफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर 39,000 का आपके पास डिफिशिएंसी आपको ट्रांसफर करना, बाकी बैलेंस का लायबिलिटी साइड में आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया क्रेडिटर्स का 39,000 आपने पे लिख दिया। सो वी क्लोज द अकाउंट फर्स्ट। अभी अकाउंट क्लोज करते हैं। हैश टोटल देखो 31,500, ये 20,000 है टोटल करेंगे। कितना है 500 17 3,500 7 और 5 12, ये टोटल चेक करो एक बार। 7 और 5 12 14 17,500 बाकी 17,500 ये टोटल करो 17,500, ये 17,500 और 3,000 20,500, ये टोटल है इसके 31,500, ये टोटल पहले करो 31,500 31,500। थोड़ा अमाउंट लिखते जाओ बनाओ, यहाँ पे डिफरेंस निकालो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर इक्वली आपको उनको देना है दोनों को भी। तो लॉस कितना था देखो 31,500 में से माइनस करो 17,500, ये माइनस करने के बाद कितना रहता है 0 0 0 6 और कितने 11 7 और कितने 11 था 7 और 4 11 एक 14,000 14,000 आपका डिफरेंस हो जाएगा। 14,000 डिफरेंस आपका है। ये क्रेडिट साइड की टोटल, ये डेबिट साइड की टोटल, ये वर्किंग नोट है आपकी, वर्किंग नोट में आप लिखे 14,000 का लॉस है। तो गोइंग टू शाश्वत को देना है आपको 7,000 इक्वल, हमको देना है डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, और शिव को देना है आपको 7,000, शिव अकाउंट 7,000, दोनों के टोटल कितना है 14,000। इस तरह 14,000 का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका लॉस है उन दोनों को इक्वल देना है। क्रेडिट में तो डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस, ये लॉस का अमाउंट है 7,000, ये 7,000 का सेकंड डेबिट आपको मुझे डेबिट में करना है। ओके ठीक है, अभी क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका डिफिशिएंसी जो फर्क आएगा वो डिफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, डिफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके बाद में क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे।
तो हाईएस्ट टोटल देखो 6,000, यहाँ पे 7,000 है, तो 7,000 आपका ये हाईएस्ट टोटल, यहाँ पे 7,000 लिखो। जो टोटल हाईएस्ट आपको पहले प्रिपेयर करना है, 7,000 हाईएस्ट है वो क्रेडिट में लिखे। यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा, उसको बोलना है बाय डिफिशियंसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। फर्क जो आता है उसे डिफिशियंसी कहते हैं। डिफिशियंसी 1,000 रुपीज, ये होगा 1,000 रुपीज आपका सरप्लस। ये होगा 17 और 12 और 5, 12 और 7 कितने थे? 19,000। ये 19,000 टोटल आए थे, वो 19,000 अब सीयू की 19,000 टोटल करो, इसमें से 500 माइनस करो, यहाँ पे कितना आता है डिफरेंस? 18,500। ये डिफिशियंसी अकाउंट बैलेंस फिगर 18,500। ट्रांसफर टू डिफिशियंसी अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट में, डिफिशियंसी अकाउंट कहाँ पे आएगा आपका? डेबिट में। डेबिट में आपका आएगा 2, डिफिशियंसी अकाउंट के डेबिट में लिखो 2 शाश्वत कैपिटल अकाउंट एंड शिव कैपिटल अकाउंट। डिफिशियंसी आपको लिखना है शिव कैपिटल अकाउंट। ये डिफिशियंसी का बैलेंस 1,000 एंड 18,500। ये डिफिशियंसी जो आपकी आई ये 1,000 और ये 18,500, ये आपकी दोनों की डिफिशियंसी आपकी दोनों की टोटल अगर कितनी आती है? 19,500। ये टोटल आपको करना है 19,500, 19,500 और यहाँ पर लिखो 19,500। ये टोटल आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा आपका, दैट इज आवर क्रेडिटर्स। ये आपकी क्रेडिटर्स का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा, देखो उतना आता है क्या? क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे देखो ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट ट्रांसफर करना है 19,500। ये 19,500 आ रहा है आपका। ये ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है 99,500। कहां से लिया आपने? डिफिशियंसी अकाउंट से। यहाँ पे देखो टू डिफिशियंसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टू डिफिशियंसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 19,500। देखो 19,500। तब ये डिफिशियंसी अकाउंट थर्ड अकाउंट ये आपको क्लोज करना है। पहले 1, 2, ये तीसरा आपको क्लोज करना है। बाद में 4 नंबर को डिफिशियंसी क्रेडिटर्स अकाउंट आपको क्लोज करना है और 5 नंबर को आपको डिफरेंस करो। हाईएस्ट टोटल 39,000 है आपकी, 39,000। ये टोटल यहाँ पर लिखो 39,000। यहाँ पे डिफरेंस निकालो, उसे कहना है जो क्रेडिटर्स का बैलेंस आ रहा है बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैंक अकाउंट बैलेंस कितना आता है? 0, 5, 5, 10, 19,500। ये भी उतना आता है 19,500, 19,500 टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट का आपको डिफरेंस देना है टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये आपको डिफरेंस निकालना है 19,500। 19,500 आपके क्रेडिट में आएगा ये अकाउंट के, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है। डेबिट में आया तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय, ये डेबिट में आया तो अपोजिट साइड में बाय 19,500 आपको ट्रांसफर करना है। 19,500 कितना आता है देखो, ये ट्रांसफर करना है। कहां से लिया आपने? क्रेडिटर्स अकाउंट लिखो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1 इज ये 20 और 21 21,000 बैंक अकाउंट के ऊपर 21,000। ये टोटल करो 17 और 3 20 और ये 500 1000 1,000 21,000 बोथ साइड्स आर इक्वल इनटू दिस प्रॉब्लम। ये दोनों साइड आपके टोटल आपके यहाँ पे बराबर है। एज पर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 250 21,000 द अमाउंट ऑफ बैंक loss is 14,000, deficiency is 1,000 and 18,500 is going to that partner's capital. So transfer to deficiency account, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको रिलायंस अकाउंट क्लोज करना है। दूसरे इसमें ऑल पार्टनर्स, तीसरा डिफिशियंसी अकाउंट का फर्क आपको क्रेडिटर्स अकाउंट को देना है, क्रेडिटर्स अकाउंट का फर्क आपको बैंक अकाउंट को देना है 19,500। जो आपका डिफरेंस है यहाँ पर ये जो डिफरेंस आपका 19,500 ये आपको ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट को। इस तरह इस प्रॉब्लम को आपको टैली करना है। व्हेन टू पार्टनर्स आर बिकेम बैंकक्रफ्ट, बिकेम इंसॉल्वेंट, हाउ टू राइट देयर अकाउंट्स इनटू दिस चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये था आपका चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
इसके अपने जो 12 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए थे, इसके पूरे आंसर्स, इसके पूरे वीडियो मैंने आपको अभी तक कैलकुलेशन करके बताया है। तो स्टूडेंट्स इसके आपको घर पे प्रैक्टिस करना है रेगुलर, उसको देखते जाओ और सामने एक रफ पेज रखते जाओ और पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको पूरा, रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिफिशिएंसी अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऑल पार्टनर्स, ये पूरे 4-5 अकाउंट आपको डिफरेंट। जब पार्टनर्स आर बैंकरप्ट विच वी प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट विच वी आल्सो प्रिपेयर अकाउंट, और उनका बैलेंस आपको बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्रेडिटर्स अकाउंट एंड डिफिशिएंसी अकाउंट एंड 2 पार्टनर्स आर बैंकरप्ट, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसके अंदर थे। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रुकते हैं यहां। सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।